So today we are going for the delivery of the 2024 BMW GS 1300. It's a nearly 30 lakh machine. There are different variants. So there are motorcycles that offer adventure touring for 3 lakhs, 2 lakh, 2.5 lakhs and onward. 10 times. I mean, क्या उतना आनंद मिल जाता है? What do you have to say? How different is it from the rest of the competitors in the market? Alright, so hello and welcome back to KTP Vlogs. आज एक नया POV है आपके लिए एंड मैं बैठा हूँ अपनी नई गाड़ी में। ऐसे नई तो नहीं है तो सेकंड हैंड, बट मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैंने नहीं ली है। आज हम जा रहे हैं एक बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। दैट इज़ मेरे फ्रेंड मोइस की। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, अनबॉक्सिंग करके आए थे हम, बट हमने डिलीवरी नहीं ली थी। तो आज हम जा रहे हैं वो डिलीवरी लेने के लिए मोटरसाइकिल की। एंड आप यू विल बी वंडरिंग वाई आज मैं फॉर अ चेंज बाइक पे नहीं हूँ, गाड़ी में हूँ। तो आपको याद होगा कि मैंने मोटो वाइब इंडिया से ऑर्डर किया था अपना माउंट, एंड दे डोंट हैव द माउंट येट। सो उनके पास आया नहीं है माउंट, अभी रेडी डिस्पैच हुआ नहीं है। एंड मुझे वो पुरानी हेलमेट और चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो इन द कार। ऐसे भी बहुत गर्मी है, रोजे के साथ गर्मी में बाइक चलाना, इतनी बातें करना सब एक साथ नहीं हो सकता। Earlier, I used to drive EcoSport, amazing car. Considering Calcutta के roads, इतने bumpers और गड्ढे हैं यहाँ पे, you need a higher car. But then that car was almost, giving me a lot of problem. बहुत सारा खर्चा दे रही थी, clutch bits and suspension, blah blah blah. So I thought of simply changing the car. And अब I wanted to upgrade, but then मेरे पास मेरे बजट में कोई बड़ी गाड़ी आ नहीं रही थी, आ भी रही थी तो the range was jumping way too high. So I decided to finally change my genre or choice of car. So from a crossover, I shifted to a sedan. Yes. So I don't know if you can guess from the interiors which sedan is this, but I'll let you know. This is a Hyundai Verna. Someday I want to also make a vlog on this particular car. It's a fantastic car. It's very peppy. 1600cc engine. पेट्रोल, वेरी रिफाइंड, स्मूथ एंड सेडान में मेरे बजट में यही आई थी। सो आई शिफ्टेड टू फ्रॉम अ क्रॉसओवर टू अ सेडान, दैट्स द वर्ना। व्हेन, व्हाई, हाउ, वी विल टॉक सम अदर टाइम। Yeah, and please let me know in the comment section how did you find my choice to be. I know कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को शायद मेरी गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी, but then it is okay. अगर you have opinion, you can always give me a car. So coming back to the topic, so today we are going for the delivery of the 2024 BMW GS 1300. Now हम सबको पता है that बहुत massively change आया है इस मोटरसाइकिल में from its predecessor GS 1250. But बाइक बहुत ही ज़्यादा स्लीक कर दी है। मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने चलाई नहीं है अभी, बट जितना मैंने देखा है बाइक बहुत स्लीक कर दी है। जो उसका मीटीनेस था ना, वो बहुत लोगों को पसंद आता था। आई वंडर, अभी बहुत लोगों को मतलब बहुत मिक्स्ड व्यूज है मोटरसाइकिल के बारे में। लुक वाइज कुछ को पसंद आ रही है, कुछ को नहीं आ रही है। लेट्स सी हाउ द बाइक इज। क्या खास है इस बाइक के बारे में जिसकी हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं ही नहीं, मोइस तो है ही बिकॉज उसने बाइक ली है, पर उसके अलावा उसके फ्रेंड्स जो हम लोग हैं, हम लोग सब थोड़ा एक्साइटेड है बिकॉज इट इज अ वेरी गुड बाइक। इट्स अ वेरी प्रीमियम class of a bike. BMW always makes such benchmark motorcycles. It's a nearly 30 lakh machine. There are different variants. So on an average, अगर मैं उसको 30 लाख की भी मोटरसाइकिल पकड़ूँ on road, so there are motorcycles that offer adventure touring for 3 lakhs, 2 lakh, 2.5 lakhs and onwards. So do you see the difference? It's not marginal, it's like 10 times. Relief comfort में है, luxury feel करवाता है, बहुत सारे, it's loaded with features. I mean, what one can imagine, it's like it's a heaven, right, for touring. But then 10 times, I mean, क्या उतना आनंद मिल जाता है वो difference amount पे करके 10 times का? I don't know, it's just a question mark. So all the BMW GS 1250 900 owners, try to help me out with the answer. Let me know in the comment section. मतलब ये 3 लाख और 30 लाख, ये जो 10 टाइम्स का डिफरेंस है, क्या ये वर्थ है ये मोटरसाइकिल? कम
Let's go and check out the motorcycle first. All right, so हम आ गए BMW. And that's the cafe last time जहाँ पे हमने इफ्तारी की थी. It's a beautiful cafe. So राज जी हमारे साथ है and he's been working with BMW for a year. And तो एक साल में you have known BMW as a brand. It's a fantastic brand. It's an international MNC brand. What do you have to say? How different is it from the rest of the competitors in the market? आप अगर BMW चूज किया हो हाँ सो ऑब्वियसली GS कैटेगरी में हाँ ये अभी मार्केट में सबसे गॉडफादर बोले जाते हैं। जितना फीचर्स आपको मिलेगा GS सेगमेंट हाँ वो अदर ब्रांड्स में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि BMW इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत एडवांस है। वो तो मैंने देखा उनका इनफैक्ट कंसोल वगैरह भी इज लाइक द क्लस्टर इज फुल ऑफ आई मीन अगर आप बैठोगे मोटरसाइकिल पे देखोगे बटन से लेके क्लस्टर्स आपको वही देख के समझ आ जाएगा कि कितना कुछ है उसमें। वो लाइक क्या क्या है? आई थिंक हीटेड ग्रिप्स है, हीटेड ग्रिप्स है, ADAS है, एडास है, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल है, ट्रैक्शन व्हील कंट्रोल, असिस्ट है, विंड स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक विंड स्क्रीन है, एडजस्टेबल सीट्स है। एडजस्टेबल सीट्स है, उसके बाद आपका डैम्पिंग कॉन्फ़िगरेशन है, स्टीयरिंग बट इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स लेके मतलब ऐसा नहीं होता कि बाइक बहुत ज्यादा थोड़ा हेडेक वाला हो जाता है कि यार इतना कुछ है मोटरसाइकिल में, यूज भी करते हैं लोग। बट आज के ज़माने में जिसमें ज़्यादा फीचर्स है जी। उसी पे जाते हैं। हाँ कि चाहिए मैं- तो सब कुछ। मुझे अगर चाहिए तो मुझे टॉप नॉच फीचर्स वाला चाहिए। राइट राइट। मान लो कि आप 1300 चला और वहाँ पर कोई हो सकता है फीचर्स मान लीजिए कि वो नॉर्मल फीचर्स आपको मिल ही रहा है, हाँ। बट इसमें एडवांस फीचर्स वगैरह हाँ। फिर वो कहीं पर ना कहीं पर जाके बोलेंगे कि लाइक अगर मैंने इतना इन्वेस्ट किया था और थोड़ा सा इन्वेस्ट करने से मुझे टॉप नॉच वो फीचर्स ऐसा है ना कि पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं, मिल क्या रहा है, क्या क्या चीज मिल रही है आइडियली। बेसिक लाइक ट्यूबलेस टायर्स है, Tubeless tyres, डबल crosswind साइड wheels, स्पोक्स है, चेन नहीं है, शाफ्ट ड्रिवन है, शाफ्ट ड्रिवन है। सो BMW की एक बहुत ही स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, आई थिंक ओनली BMW में Yeah. शाफ्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल्स। शाफ्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल, अब शाफ्ट ड्रिवन क्या होता है ये आप गूगल कर लीजिए, उतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली शाफ्ट ड्रिवन मेंटेनेंस फ्री होता है। चेन्स पे क्या होता है कि वो चेन एक टाइम पे जाने के बाद ड्यू क्लीनिंग तो है ही साथ, क्लीनिंग भी नहीं करना पड़ता शाफ्ट में, तो पूरा क्लोज्ड ही रहता है ना ये उसका पूरा फुल mechanism। कवर्ड रहता है। हाँ एंड इसका मेंटेनेंस मतलब आप कुछ बोल ही नहीं सकते कि कुछ लगता ही नहीं है इसमें, ठीक है। ओके। चेन्स पॉकेट में क्या है कि टाइम टू टाइम आपको क्लीन करना पड़ेगा, ल्यूब करना पड़ेगा, फिर एक टाइम के बाद पे वो खत्म हो जाता है, फिर रिप्लेस करना पड़ता इनफैक्ट ये GS 1300 में दो मोनो सस्पेंशन है, आगे भी है। है। वाह, मोस्टली मोटरसाइकिल्स में पीछे एक रहता है, इधर आगे भी है, सो दैट आई थिंक अवॉइड्स द नोज डाइव। Yeah. So we know that the motorcycle comes with a lot of features, but then for a layman to buy it for a price point like 30 lakh, सो बेसिकली आप अगर 30 लाख इतना इन्वेस्ट कर रहे हो हाँ, सो फीचर्स में कुछ कमी नहीं है। पहली बात आप RSA वगैरह भी देते हो उसके साथ? रोड साइड असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं That's for how many years? Complementary? 1 ईयर 1 year. 1 ईयर, उसके बाद आपको 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल कराना। इसका जो RSA है, हाँ BMW का जो RSA है, नॉट ओनली ये है कि आपका गाड़ी डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी को उठा के लेके आ सकते, हाँ, ऐसा नहीं। on spot fix भी BMW करते का वहाँ पर फैसिलिटी भी है, ऐसा फैसिलिटी है कि मान लीजिए आपका वहाँ फ्यूल खत्म हो गया, हैं। फ्यूल असिस्ट है, वाह मेडिकल के लिए मेडिकेशन वाह। हॉस्पिटलिटी के लिए, और आपको होटल्स के लिए होटल्स भी वो लोग मैनेज करके देंगे। आपका गाड़ी अगर मान लीजिए कहीं डैमेज हो गया, गाड़ी तो पिकअप करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको एकोमोडेशन भी। So does it work like insurance, travel insurance type? So all that is paid by BMW या बाद में फिर बिल आपको भेजेंगे? नहीं सही ये BMW की तरफ से ही होगा, बट कुछ परसेंटेज मतलब अगर बाइक के चलते कुछ ऐसा हुआ कि हाँ। आप कहीं फंस गए तो हाँ। BMW is there to take care of you. Yes. You just have to maybe inform them. Yeah. Wow. अब आप जैसी सर्विस चाह रहे हो आपको शायद मिलेगी if you pay the right price. मुझे तो लगा 1250 के जो फैंस थे वो थोड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि 1300 की लुक्स एंड ऑल, लुक्स प्राइस बात कर रहा हूँ। तो कुछ एक फैन फॉलोइंग थी उस समय जो उसकी असिमेट्री, जैसे आपने S1000 RR का देख लो, पुरानी वाली S1000 RR का भी फैन बेस अलग था, राइट? नाउ दिस पीपल हैव स्टार्टेड लाइकिंग ग्रेजुअली। अब मेरे को भी अच्छी लगने लगी, पहले भी अच्छी लगती थी, बट वो थोड़ी हट के लगती थी असिमेट्रिक। सो इस बार भी जो सिमेट्री आ गई है, तो ये अभी हाउ इज द रिस्पांस ऑन दिस? रिस्पॉन्स इज गुड। बेसिकली इसका जो डिमांड है, दो मॉडल्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक तो आपका ट्रॉफी का डिमांड है, हाँ जो मोइज ले रहा है अभी, और एक आपका डिमांड है ट्रिपल ब्लैक।
कि 1300 जीएस में ट्रिपल ब्लैक में हमको राइड हाइट राइड हाइट अडेप्टिव। जो शॉर्ट हाइट पर्सन है, सो उसके लिए भी सीट हाइट मैनेजेबल हो। Okay. और ये इसमें क्या है, ये आप ऑटोमेटिक एडजस्ट कर सकते हो राइड हाइट एडेप्टिव अपने हिसाब With से। the- आप इलेक्ट्रॉनिक Wow. सस्पेंशन उठा भी सकते हो और डाउन भी कर सकते तो हो। कितना डिफरेंस आ जाता है फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट? ये आपका लाइक 850 सीट हाइट है ऐसे स्टॉक में 1300 का। हाँ, और ये आपका राइड हाइट एडेप्टिव में अराउंड आपका 820 के आसपास में आ जाए। ओके। एंड इफ यू वांट हायर देन 850 वो भी हो सकता वो है। उसके लिए भी हो सकता है। गाड़ी जब आप रन कर रहे हो हम्म। तो उस टाइम क्या होता है, सस्पेंशन हाई हो जाता है। हाँ, ये मैं एक्चुअली देखा कल ये चीज। आई थिंक आपको व्हेन यू राइड द मोटरसाइकिल ओनली देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब चलते चलते व्हेन यू गो एट अ हायर स्पीड वो ऑटोमेटिकली थोड़ा Automatically up हो जाएगा। वाओ। एंड देन जब आप स्लो करोगे तब वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये सब चीज है जो कि हट के दूसरे ब्रांड पे आपको मिलेगा। So basically आपके हिसाब से दिस बाइक gives a person more luxury, Yeah. more comfort कंफर्ट। while you are doing adventure. या So this is like a mostly touring bike. टूरिंग में How would you would you count it in the category of an off-road motorcycle? अगर हार्डकोर ऑफ रोड के लिए बोलेंगे हाँ, सो बेसिकली मैं सर बोलूंगा नहीं हाँ। कि हार्डकोर ऑफ रोड में आपको लाइक इसका 900 जो जीएस F9. F9 उसका प्रोफाइल डर्ट टाइप। सो आप बाइक को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसका टायर प्रोफाइल है। And this is more towards touring. या What is the weight of the 13er? 236। तो ये ऐसी बाइक अगर पहाड़ों में कभी गिरे तो how difficult or easy is it to lift it up? इसके लिए हमारा इवेंट्स होते हैं, हम्म। जीएस एक्सपीरियंस। हाँ, सो लेवल 1 एंड लेवल 2 ये होते हैं। सो इसमें क्या होता है कि बाहर से ट्रेनर आते हैं, ट्रेन करते हैं हमें। yeah. कैसे- Actually makes sense. Like I also ride a KTM. वो लोग का भी ऐसा ही कुछ events होता है. So I also keep going there because बहुत कुछ सीखने मिलता है. बहुत And I'm sure with GS is the kind of the range of bikes they have. It's very expensive a bike. So to take care of it also, I think people should know. They should also know how to ride it. You know the features. Features use करना भी आना चाहिए. Exactly. I mean because आप otherwise, लेके चले जाओगे और राइड तो होगा नहीं पहली बात। right. कि आपको पता ही नहीं है उसके बारे में अच्छा से हाँ. कैसे चलेगा, कैसे टैकल करना है उसको, फिर गिर जाएगा तो कैसे उठाना है उसको, Right. हाई पंप्स पे कैसे निकालना है, पॉट हाउस पे So कैसे- technically, if you are sound, so you can manage everything. That's true. So basically, what are the variants that BMW has right now? Now, you have 4 variants. One is white, second is trophy, third one is triple black, and fourth one is 719 optional. 719 optional आपका टॉप वेरिएंट है। हाँ, सो इसमें भी कुछ डिफरेंसेस है कि 719 पे आपको अडास मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर मिल रहा है, मतलब ब्लाइंड स्पॉट मिरर जिसको बोलते हैं वो। और उसमें क्या है कि कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत सारे, लाइक आपका लीवर्स हो गया, ब्रेक पैड, you're talking about the green one. ग्रीन वन। इंजन तो सेम है हाँ, बट कॉस्मेटिक चेंजेस की वजह से एंड फीचर्स थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए इसका प्राइस वेरिंग कर रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए. We did not speak about one very important thing. I've seen that this motorcycle has 5 riding modes. या What are those 5 riding modes? 5 राइडिंग मोड्स में आपका है रोड मोड है, हाँ. रेन मोड है, Hmm. डायनामिक है, इंड्यूरो है, इंड्यूरो प्रो। So rain and road तो हम सबको पता है. What is the enduro mode and the dynamic mode? And डायनामिक फॉर आपका मान लीजिए कि आपको हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा पावर चाहिए, हाँ, सो बेसिकली आप डायनामिक पे चला सकते okay, हो। इंड्यूरो फॉर ऑफ रोडिंग। okay. उसमें ब्रेक्स वगैरह में भी उसमें changes क्या है होता कि उसमें एबीएस वगैरह आपका ऑफ हो जाएगा। वो इंडिरो इंजन का जितना रॉ पावर है पूरा एकदम Wow. हार्ड के दे देगा उसमें। Wow. And which was the 5th one that you said? इंड्यूरो प्रो, Enduro Pro. Yeah. वो उसका भी बाप. उसका भी बहुत ठीक है। So basically ये ECU Riding mode में pre-selection. ECU की सिलेक्शन होती है. Yeah. ECU के मैपिंग बेसिकली Yeah. उसकी अलग तरह से होती है. एंड उसके हिसाब से वो इंजन का पावर आउटपुट होता है। Yeah. Mode से. Yeah. So thank you Raj bhai for your time. ये GS ये है. हाँ, लेकिन ये कहीं दिख नहीं रहा लिखा हुआ। ये हम सब पूछ ले बोल 10% कमीशन देने को रेडी है. देख ग्रीन थोड़ा मेरे को पसंद नहीं है कलर. इसमें राइजर लगा के थोड़ा पास ले आया तब तो और जरूरत नहीं पड़ेगा. तू खड़ा होके देख, स्टैंड पे लगा के खड़ा हो.
हाँ इसका बेटर कुछ You need space. You need space. That's why this is a space machine or what? All right, so we are back, and the delivery was amazing. The bike is amazing. Looked really fabulous. मैं जितनी आज बाइक के बारे में बात की और जितने भी लोग आए थे उनसे जितना भी कुछ डिस्कस किया, my God, I feel the bike is maybe worth the price, but then yeah, the bike is very good. You know, one of the best in its segment, and whatever it offers, the features and comfort, the luxury, the performance, it all seems really amazingly fantastic. So I'm on my way back. You please let me know in the comment section how did you find the bike, and until then, ride safe, drive safe, take care.